Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video, we will continue with chapter 13, Down the Rabbit Hole. All of you get ready with your literature book and open page number 107, chapter 13, Down the Rabbit Hole. So this story was written by Lewis Carroll. He was born in 1832 and he died in 1898. Was an English writer, mathematician, philosopher, priest and photographer. He is known as a master of the genre of literary nonsense and featured word play, fantasy and mathematical riddles in his works. His best loved works are Alice's Adventures in Wonderland and its sequel, Through the Looking Glass. Now let's begin with our story. So this story is a extract of Alice Adventures in Wonderland. That means ये जो स्टोरी है डाउन द रैबिट होल, ये जस्ट एक पार्ट है एंड ये पार्ट ली गई है एक बुक से जिस बुक का नाम है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड. दैट मीन्स दिस इज़ द नेम ऑफ अ बुक एंड दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम दैट बुक. ये जस्ट एक पार्ट है उस बुक का. So now let's see the story. So this story, it's about a 7 years old girl named as Alice. ये जो स्टोरी है वो एक 7 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम है एलिस. एलिस के बारे में है, वो एक 7 साल की एक लड़की है. So now let's see the story. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, of having nothing to do. Once or twice she had peeped means to looked into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversation? That means here Alice was sitting with her sister and she was trying to see what her sister was reading. That means यहाँ पे Alice अपने sister के पास बैठी है and she was trying. That means वो कोशिश करती हैं, देखती हैं, झांकती हैं कि उसकी sister जो हैं, जो उनके बगल में बैठी हैं, वो क्या पढ़ रही हैं, वो क्या read कर रही हैं. Alice was not getting any interest in that book. That means Alice was not having any interest in that book which her sister was reading. जो उनकी बहन है जिस बुक को पढ़ रही हैं, एलिस को उस बुक को देख के बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जगता है बिकॉज दैट बुक वॉज नॉट हैविंग एनी पिक्चर एंड कन्वर्जेशन रिटन ऑन इट. दैट मीन्स जो बुक उनकी सिस्टर पढ़ रही थी उस बुक में ना ही कोई पिक्चर थी ना ही कोई कन्वर्जेशन लिखा था. सो उस बुक को एलिस ने देखा जब, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जगा कि वो भी उस बुक को पढ़े. एंड नाउ द एलिस इज सेइंग दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट बुक. उस बुक का क्या यूज़ है जब ना ही उसमें कोई पिक्चर दी गई है ना ही उसमें कोई कन्वर्जेशन लिखा हुआ है. देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट बुक दैट यू आर रीडिंग. सो उस बुक को देख के एलिस को फील होता है कि जब ना उसमें कोई पिक्चर दी है ना ही कोई कन्वर्जेशन लिखा है, देन उस बुक को पढ़ने का क्या मतलब है. सो सिमिलरली आप भी बच्चे हों, आपको भी वही सब बुक्स अच्छी लगती है जिसमें डिफरेंट कलर्स हो, डिफरेंट पिक्चर्स हो, डिफरेंट कन्वर्जेशन लिखी हो. सो वो बुक्स आपको अच्छी लगती है, आप उसको पढ़ना चाहते हो. बट ऐसे सिंपल सी एक बुक रहेगी देन आपको भी इंटरेस्ट नहीं जगेगा कि आप उस बुक को पढ़ेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. सो शी वॉज कंसिडरिंग in her own mind, considering means remembering, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Here the meaning of considering means remembering, and whether, you know what is whether means doubt, and pleasure means happy. So here we can see that Alice was having no work.
Alice was not having any work to do and it was a hot day. So she was feeling sleepy and stupid. सो जब आपके पास कोई काम नहीं रहता है करने को, देन ऑब्वियस है कि आप बहुत स्लीपी फील करते हैं एंड बहुत स्टूपिड फील करते हैं. सो एलिश कोशिश करती है कि वो कुछ सोचे, बट उनको बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है एंड वो बहुत आलस फील करती हैं. सो नाउ शी थॉट टू मेक अ डेजी चेन. सो शी थॉट, वो सोचती हैं कि वो एक डेजी चेन बनाती हैं. सो डेजी एक वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. सो उन्होंने सोचा कि डेजी के जो फ्लावर्स हैं वो उनको पिक करके, मीन्स उनको तोड़ के एक डेजी चेन बनाएंगे. बट उनको ये भी माइंड में आता है कि अगर चेन बनाने के लिए पहले हमें एक फ्लावर्स चाहिए ढेर सारे. सो फ्लावर्स के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, पहले फ्लावर्स तोड़ना पड़ेगा एंड देन उसकी एक माला बनानी पड़ेगी, चेन बनानी पड़ेगी. सो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ट्रबल है उसमें भी. सो सडनली एलिस saw a white rabbit with pink eyes. Then उन्होंने अचानक से एक white rabbit को देखा and he was having a pink eyes. एक rabbit को उन्होंने देखा जो white कलर का था and उसकी pink eyes थी. Now there was nothing so very remarkable in that. Here remarkable means unusual in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be late. When she thought it over afterward, it occurred to her that she ought to have wondered at this. That means then suddenly when she saw a white rabbit, जब उन्होंने एक white rabbit को देखा and उसके बाद उन्होंने notice किया कि जो वो white rabbit था वो बोल रहा है and he was saying that oh dear, I shall be late. सो जब उसने ऐसा देखा, एक रैबिट को देखा बोलते हुए, देन पहले तो उनको बहुत नॉर्मल सा लगा कि ओके फाइन इट इज़ कि एक रैबिट बोल रहा है. बट थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि कैसा रैबिट है कि जो कि बोल सकता है. देन उनको अंदर एक मीन्स एलिस के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी कि आई शुड नो मोर अबाउट दैट रैबिट, कि मुझे उस रैबिट के बारे में और जानना चाहिए. सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. But at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it, then suddenly after some time that white rabbit took out a watch from his waistcoat pocket. Then कुछ टाइम बाद एलिस ने देखा कि उस रैबिट ने उसने एक वाइट कोट पहना था, उसने एक वेस्ट कोट पहना था एंड उस वेस्ट कोट में पॉकेट थी. उसने अपने पॉकेट से वॉच निकाली एंड उस वॉच से उसने टाइम देखा. सो ये चीज़ें देख के एलिस को बहुत अट्रैक्टिव लगी एंड उसने सोचा कि मैं इस रैबिट के बारे में और जानना चाहूँगी कि ये रैबिट कहाँ से आया है, इसका क्या नाम है एंड ये कहाँ रहता है. बिकॉज ऑलरेडी उसने उससे बोला था ओ डियर आई शैल बी लेट. दैट मीन्स मैं अभी लेट हो सकता हूँ. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो वाइट रैबिट है वो बहुत एलिस को बहुत अट्रैक्टिव लगता है एंड एलिस उसके बारे में और जानना चाहती है. एंड देन हरीड ऑन. दैट मीन्स आफ्टर सीइंग द टाइम दैट वाइट रैबिट वेंट ऑन. उस वाइट रैबिट ने पहले टाइम देखा अपनी वॉच में एंड देन ही हरीड ऑन. हरीड ऑन मीन्स देन ही क्विकली मूव ऑन. Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch, or to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. That means here the meaning of hurried means done quickly, flash means to produce,
Curiosity, you all know about curiosity. Curiosity means desire to know more about anything. Okay, and fortunately means you can say good luck. Pop means to go somewhere quickly, and hedge means you can say the edge of the garden. So here मीन्स यू हैव सीन दैट एलिस ने एक वाइट रैबिट को देखा एंड देन वो उस रैबिट के बारे में और भी जानना चाहती थी एंड देन उन्होंने नोटिस किया कि जो रैबिट है वो बहुत बहुत जल्दी में है एंड वो क्विकली कहीं जा रहा है एंड देन एलिस ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रैबिट because Alice was very surprised to see Rabbit wearing a waistcoat and he was carrying a watch. So she wanted to know more about that rabbit. So she started following the rabbit. That means उसने देखा मीन्स जो रैबिट था वो बहुत सरप्राइज़ किया एलिस को एंड उसने नोटिस भी किया कि उस रैबिट ने कुछ बोला भी उसे ओ डियर आई शैल बी लेट एंड फिर उसने देखा कि उस वाइट रैबिट ने एक वेस्ट कोट पहना है एंड ही वॉज हैविंग अ वॉच एंड उसके पास एक वॉच भी है. सो ये सारी चीज़ें देख के एलिस को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो और भी जाने उस वाइट रैबिट के बारे में. सो शी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रैबिट. देन वो उस रैबिट को फॉलो करती हैं कि वो जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे एलिस भी जाना स्टार्ट कर देती हैं. यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन. आप पिक्चर में देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पहले एक रैबिट है, उसने एक वेस्ट कोट पहनी है एंड देन उसके पास हाथों में एक वॉच है एंड उसके पीछे एलिस उसे फॉलो कर रही है एंड देन उसे फॉलो करते करते वो लोग जो रैबिट है, जो लार्ज रैबिट है, वो अपने होल के पास पहुंच जाता है जहां वो रहता है एंड देन उसे फॉलो करते करते जो एलिस है, एलिस भी वहां पहुंच जाती हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. In another moment, down went Alice after it. That means उसे फॉलो करते करते जो एलिस है वो भी रैबिट के होल में चली जाती हैं. Never once considering how in the world she was to get out again. That means you can see as Alice was following White Rabbit, so she also directly went down. वो उसे फॉलो कर रही थी वाइट रैबिट को, सो ऑब्वियस है वो भी उसके पीछे पीछे उसके होल में चली गई. जो उसका जो होल था जहाँ वो रहता था वाइट रैबिट, सो वो भी उसे फॉलो करते हुए उस होल के नीचे चली गई. लाइक दिस शी वॉज फार अवे फ्रॉम हर ओन वर्ल्ड. शी लॉस्ट हर सिस्टर हु वॉज रीडिंग द बुक. दैट मीन्स यहाँ पे एलिस किसी और वर्ल्ड में चली जाती हैं एंड शी लॉस्ट हर सिस्टर एंड वो अपनी बहन को भी लॉस्ट कर देती हैं बिकॉज उनकी सिस्टर तो एक जगह बैठ के बुक रीड कर रही थी एंड वो यहाँ पे किसी और वर्ल्ड में चली जाती हैं एंड वो अपनी सिस्टर को भी खो देती हैं बिकॉज अभी उनके पास कोई भी नहीं रहता है. वो अकेले ही उस रैबिट को फॉलो करती हैं एंड फॉलो करते करते रैबिट होल में चली जाती है जहाँ पे वो रैबिट रहता था. Now see the next line. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way. That means जो rabbit hole था वो straight था एकदम like a tunnel. Tunnel means like सुरंग. जो सुरंग होती है उसके तरीके से उसी तरीके से वो rabbit hole था and then dipped suddenly down and then it was going down. That means वो सुरंग टाइप के था, टनल टाइप के था, टनल टाइप का होल था एंड देन उस टनल में डाउन डायरेक्शन में कुछ जगह थे. So suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well. That means in this, as the situation was, Alice was completely lost. She was not thinking about her family. ऑब्वियस है कि वो उसे फॉलो कर रही थी एंड फॉलो करते करते उस रैबिट को वो उसके होल में भी चली गई. दैट मीन्स नाउ ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग हिज फैमिली. वो अपने फैमिली के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सोचती हैं एंड उस रैबिट का पीछा करते करते वो उस होल में भी चली जाती हैं एंड वो सोचती हैं कि मैं इस होल से कैसे निकलूँ, बट वो इतनी ज़्यादा आगे चली जाती हैं कि अब वहाँ से वो पीछे जाना बहुत मुश्किल था बिकॉज
जो होल था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत बड़ी होल थी. Either the well as very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. That means here she was wondering what will be going to happen next. That means उनके पास enough time था, because जब वो उस सुरंग में जा रही थी, मीन्स वो जब गिर रही थी उस सुरंग में, सो उनके पास इनफ टाइम था, बिकॉज वो बहुत स्लोली मूव कर रहे थे. जो गिरने की जो उनकी स्पीड थी वो बहुत धीरे धीरे थी. सो उनको ऐसा फील हुआ कि आइदर जो होल है वो बहुत ज़्यादा डीप है या फिर मैं बहुत धीरे धीरे गिर रही हूँ. सो उनके पास इनफ टाइम था कि वो बहुत कुछ सोच सकती हैं. सो शी वॉज थिंकिंग कि इसके बाद क्या होगा, कि मैं मीन्स होल, अभी तो मैं जस्ट इस होल के अंदर गिर रही हूँ, इसके बाद अब क्या होगा मेरे साथ. First, she tried to look down and make out that she was coming to, but it was too dark to see anything. That means जब वो होल के अंदर गिर रही थी, सो वो कोशिश कर रही थी कि वो आसपास की जो उनकी एरिया उसे देखे, बट वो बहुत ज़्यादा डार्क था. सो शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग. देन शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल, एंड देन वो आसपास की उनकी जगह को देखती है and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. That means उन्होंने नोटिस किया कि जो वेल था, मीन्स जो होल था, ओके यहाँ पे होल को एक कुएं की तरह कहा गया बिकॉज वो बहुत डीप था. सो जो वेल था उन्हें ऐसा फील हो, मीन्स वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके आसपास क्या थे, कबोर्ड्स थे एंड बुक शेल्फ्स बने हुए थे. हियर एंड देयर मीन्स हर जगह बुक शेल्फ थे एंड कबर्ड्स थे. She saw maps, pictures hung upon pegs. उन्होंने देखा कि आसपास वहाँ पे पिक्चर्स लगे हैं, मैप्स लगे हैं. She took down a jar from one of the shelf as she passed. It was labeled orange marmalade. That means here, but to her great disappointment it was empty. Disappointment means dissatisfied, you can say. सो जैसे ही वो उस वेल में मूव कर रही थी, उस होल में मूव कर रही थी, उन्होंने नोटिस किया कि उनके आसपास कबोर्ड्स थे, बुक शेल्फ्स थे एंड कुछ पिक्चर्स थे, मैप्स थे जो आसपास टंगे हुए थे. एंड देन उन्होंने देखा कि एक शेल्फ पे एक जार रखी गई है एंड वो जार था, उस जार पे लिखा हुआ था ऑरेंज मार्मलेड. मार्मलेड मीन्स ये एक जैम है ऑरेंज कलर का. एंड देन व्हेन शी opened that jar, she found that jar was empty. And then जब एलिस ने उस जार को ओपन किया, देन उन्होंने देखा कि उस जार में कुछ भी नहीं था, वो जार बिल्कुल भी खाली था, मीन्स उसमें जैम नहीं था. सो शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, से वो बहुत ज़्यादा फिर दुखी हो गई बिकॉज वो खाली था. शी डिड नॉट लाइक टू ड्रॉप द जार for fear of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. That means then उन्होंने जो एलिस ने जो जार लिया होता, उन्होंने उस जार को फेंका नहीं. उनको ऐसा फील हुआ कि अगर मैं अभी फेंक दूंगी तो मे भी ऐसा हो सकता है जो मेरे नीचे होगा उसके सर पे लग सकता है या किसी को भी चोट लग सकती है, बिकॉज वो होल में जस्ट गिर रही थी. जो वेल था उसमें वो गिरते हुए पोजीशन में थी. सो ऑब्वियस है, अगर आप कोई भी चीज़ें हाथ पे लिए रहोगे, आप उसको फेंकोगे, देन वो नीचे की तरफ जाएगा. ओके, सो उनको ऐसा फील हुआ कि अगर हो सकता है कोई नीचे रहता हो, देन उसे चोट लग सकती है. सो उन्होंने कोशिश किया कि उस जार को भी वो किसी शेल्फ में रख दे. So now students, I will end this class till here. In next class, we will continue from this chapter. All of you, don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Have a nice day.